Hello and welcome to the Avatar Sethi show. Everybody wants to look good and feel healthy. We have therefore invited a nutritionist. She is a world renowned nutritionist. She has also cured thousands of people suffering from celiac disease. And she is none other than Ishi Khosla. Welcome to the show. Thank you. Ishi. And we also have young audience with us who will ask questions because they are all raring to ask their own questions and solve their own problems. So we'll start with the question, Ishi. What exactly is the celiac disease? First of all, thank you for having me here. And with such a young audience, it's always a different feeling and a pleasure. So yes, celiac disease is a disease of the intestines where the protein in wheat called gluten attacks the intestines and destroys the capacity of the intestines to absorb food, and also then create inflammation and gut changes which are associated with long-term diseases, and many diseases are associated with celiac disease. So it's basically an autoimmune problem. Autoimmune problems are on the rise, and this is also on the rise, the association of wheat with disease came about almost 100 years ago when some scientists and doctors were finding that diarrhea in children was not getting controlled by normal medication, and when they changed the food by default, they noticed a complete change in the children. So it was associated as a childhood disease, as a diarrheal disease, and a rare disease. But today we see celiac disease is not only affecting children. Average age of diagnosis is 45 years, although you are born with it. And that it can happen with symptoms, it can happen without symptoms. So you may know nothing, and one fine day, it's a serious condition. It's not just about diarrhea and digestion. It can, if it's undiagnosed, it can lead to malignancies which are too late. So internally it starts damaging your gut. And I think gut today is the seat of all the conversation and problems that we are seeing with respect to health. So if we want to be healthy, we have to have a healthy gut. And if the protein in wheat is damaging our gut, it's doing everything which is contrary to health. And it's not only celiac disease, it is also what we call wheat-related disorders which go beyond celiac. Celiac is a very typical damage done by wheat. But today we are seeing, in the absence of celiac disease, damage done to the body by wheat protein, just like celiac disease. So that is what we call non-celiac wheat sensitivity, and that has really grown. So you may not be just you can get a test done and say, I don't have celiac, but I certainly may be suffering from a wheat-related disorder in the form of non-celiac wheat sensitivity. So wahi lakshan, wahi problems, it really causes what we call the leaky gut. And the leaky gut today is the answer, almost the root cause for all the problems that we are seeing. आपने दो तीन बातें कही, एक तो वीट के बारे में, इंटॉलरेंस के बारे में बताया, गट के बारे में बताया, लेकिन बहुत सालों से हमारे पूर्वज जो हैं और हमारे माता पिता और हम भी वीट ही खाते आ रहे हैं, गेहूं ही खाते आ रहे हैं. तो आज ऐसी क्या चेंजेस आ गई कि अब कहते हैं कि वीट खाना नहीं चाहिए या कम कर देना चाहिए. मैं समझता हूँ शायद सारे लोग तो वीट से उनको एलर्जी नहीं है, लेकिन बहुतों को है और वेरिंग डिग्री है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है. तो ये कैसे जो है वीट एकदम उभर के आया जो कि हमारी हेल्थ को बिगाड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल मेरे से इतने बार पूछा जाता है. तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि गेहूँ एक इन इटसेल्फ, वीट इज़ अ नोन एलर्जन. एलर्जन मतलब 8 एलर्जेंस होते हैं, जिसमें एग्स भी होते हैं, सोया भी होता है, और शेल फिश, नट्स एट्सेट्रा. सो इसमें एक वीट का भी एक कंपोनेंट है. तो इसका मतलब ये इम्यून सिस्टम को
कहीं ना कहीं कई लोगों में ट्रिगर करता है, एंड इट्स अ नोन रीज़न फॉर प्रॉब्लम्स लाइक एलर्जीज. बट एलर्जी ऑफ व्हीट इज़ वेरी अनकॉमन. एलर्जी के सिम्टम्स बड़े अलग होते हैं. एलर्जी थोड़ी देर में ही मतलब लक्षण आ जाएंगे, आपको छींक आ जाएगी या रैश हो जाएगा या पेट में दर्द हो जाएगा या लूज मोशन. तो इट्स अ वेरी विद इन आवर्स. दैट्स अ वेरी रेयर कंडीशन. हम लोग बात कर रहे हैं एक अनाज की जो एलर्जन है, जिसमें हमने कहीं ना कहीं बदलाव लाए हैं. जो वीट आपके एंसेस्टर्स खा रहे थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खा रहे थे, हमारे वो और पोस्ट 60 वाली वीट में चेंजेस आ गए हैं. हमने जेनेटिकल डिफरेंस आ गया कुछ, हाइब्रिड उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो जेनेटिक लेवल पर ही आए हैं. और ये जो हैं ये एक एलर्जन अनाज में करे गए हैं. क्योंकि ये सवाल उठता है कि ये तो हाइब्रिड है, तो इतनी चीज़ें हुई हैं, तो इससे क्यों प्रॉब्लम आई. वन ऑफ द रीजंस परहैप्स इज़ दैट कि आप जिसमें कुछ ना कुछ इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल था, उसमें ही हमने खिलवाड़ कर दिया और उसको हमने हाई यील्डिंग बना दिया, हमने उसको पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बना दिया, उसमें और भी उसके एट्रीब्यूट्स इंजीनियर कर दिए. तो वो उसमें उसके बाद और पॉपुलेशन को खिला दिया. उसके ऊपर कोई सेफ्टी, जैसे कोविड में वायरस में वैक्सीन बनी और डाली क्योंकि फैमिन थी, लोगों को खिलाना था, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा था. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिक्वायर्ड, बट उसमें गेहूं की जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थी और द सेफ्टी ऑफ द न्यू ग्रेन वाज नॉट स्टडीड. एंड वो उसके बाद आप देखिए कि पोस्ट 1960s जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बनी हैं 20 साल बाद, वो ही एपिडेमिक अभी कंट्रोल नहीं हो रहे. चाहे वो हार्ट डिजीज़ हुआ, मोटापा हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ऑटो इम्यूनिटी हुआ, कैंसर हुआ, मेंटल हेल्थ हुआ, कुछ भी कहीं पे भी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स रुक नहीं रही. तो ये पोस्ट 60s ही हुआ है. और इसमें इन्फ्लेमेशन एक वर्ड है जो हमको सबको जानना चाहिए, पर्टिकुलरली जो हमारी ऑडियंस बैठी है, बच्चे. इन्फ्लेमेशन जो है ये एक किस्म की आग है जो सारी बीमारियों की जड़ है, जो गट में शुरू होती है. हमने गट की बात करी, तो गेहूं जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट बन गया है हमारे फूड में, विच इज़ नोबडीज़ फॉल्ट रियली. मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हम गलत खा रहे हैं या गेहूं गलत है. अब वो बदल गई, हमें पता नहीं था इसका, और ये इसके अंजाम हम भुगत रहे हैं. So that is where we are today, and it is a grain which has fed thousands of people and it's been there for thousands of years. So it can't be a bad thing. It was only a few people who used to react to it, जिनको प्रॉब्लम थी, जिनको सीलिएक था, जिनको एलर्जी थी. लेकिन अब इतने लोग कैसे हो गए, ये इसका जवाब कहीं ना कहीं इसकी मॉडिफिकेशन में है. और जो हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं वो इसको एडमिट करते हैं कि ये जो मॉडर्न व्हीट है वो इम्यूनोजेनिक है, उसमें क्रोमोसोमल चेंजेस आए हैं. एंड वी नो दैट इट वाज मतलब टेक्निकली बोलें तो डिप्लॉयड टू हेक्साप्लॉयड व्हीट बन गई. और ये चीज़ों में बहुत पेस्टिसाइड भी डाला, क्योंकि पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बना दिया. कहीं ना कहीं कोई प्लांट में आप दवाई डालते हैं तो प्लांट पर भी असर होता है, लेकिन अगर उस प्लांट को इंजीनियर ऐसा करें कि प्लांट को असर ना हो तो बेतहाशा उस पर लगाया गया. तो ये चीज़ें बदल गई हैं.